Hello students, welcome back to YSR Academy. Starting with a very interesting and a new topic of 12th standard biology subject, which is the chapter of respiration and circulation. One of the very important chapters to be discussed along with few others. So we up till now have finished three major chapters and we discussed them in detail. Human reproduction we are done with, inheritance and variation we have done with. We also finished with molecular basis of inheritance. Now students, we're starting with fourth chapter, which is again related to human physiology, particularly to human physiology, and that chapter is respiration and circulation. ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन पार्ट विच इज डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड सो ऑन. The other part of the chapter is dealing with the concept of circulation, circulatory system, organs involved in the circulatory system. So the chapter divides itself in two parts. The first part, which we are going to discuss today and start with the very first concept of respiration, is mainly focused on understanding how do we breathe and what happens to the air, to the oxygen that we breathe, and how is it traveled and reached to all the surfaces of the cells, all the tissues and organs and so on. So starting and introducing the very important topic of respiration is, why do we require respiration to begin with? Okay, हमें respiration का जरूरत क्यों है? Organisms, अगर आप कोई भी organisms को देखेंगे, when we talk about any organisms very first requires food, okay, and organisms require oxygen. okay, अगर मैं animals का बात कर रहा हूं तो फिर आपके पास food का होना बहुत जरूरी है और oxygen का होना जरूरी है. Why? Because of the simple purpose of survival. okay, survival के लिए. Now in this chapter we are actually mainly focused on this part, that what and how is oxygen processed. okay, how is oxygen processed? So students, बचपन में आपने एक रिएक्शन पढ़ा रहेगा कि अगर बाय चांस आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है, you combine that glucose with oxygen, okay, that is आप उसको ऑक्सीडाइज कर दे रहे हो. When you combine glucose with oxygen, you are going to get water, okay, you are going to get carbon dioxide and you are going to get ATP. Now students, जितने भी बेसिक्स आपके क्लियर है, इसमें से एक चीज तो आपको समझ गया है कि ATP is very important because it is the energy currency. स्टूडेंट्स, व्हाट इज एनर्जी करेंसी? एनर्जी करेंसी मतलब हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं, जो भी बेसिक बॉडी सिस्टम्स में जो काम चलते हैं, वो सारे के सारे काम एटीपी को स्पेंड करने के बाद ही होते हैं, without which it is not possible. Therefore ATP is very important for us for survival purpose. Now this only reaction can also be written down in some other form, in a molecular form. So you can have C6H12O6, okay, combines with 6 molecules of oxygen. They are going to react together to form 6 molecules of water plus 6 molecules of carbon dioxide plus 38 molecules of ATP. अभी इस चीज को तो बाय प्रोडक्ट बोल देना, ठीक है. ये तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज यही तो आपका एनर्जी करेंसी है जो कि यूटिलाइज होने वाला है ना. हर एक ऑर्गेनिज्म का एनर्जी बनाने का जो मेथड है वो काफी अलग है. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डिफरेंट मेथड्स फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल प्लांट्स के बारे में, ठीक है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्लांट्स, ओके, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. व्हेन आई टॉक अबाउट प्लांट्स के पास मेथड ऑफ रेस्पिरेशन थोड़ा सा अलग है, ठीक है. प्लांट्स के पास मेथड ऑफ रेस्पिरेशन अलग है. अब ये एग्जैक्ट मेथड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल दे यूज सर्टेन कंपोनेंट्स, ओके, और सर्टेन ऑर्गन्स, वी कैन से सर्टेन ऑर्गन्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ओके, मतलब मेकिंग एनर्जी. अभी ये सर्टेन ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो, कुछ चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ स्टोमेटा. Okay, stomata is a structure which is present on the
surface of the leaf. It is present on the surface of the leaf. This can be there. Then अगर plant का bark you understand, stem अगर काफी rigid है, काफी ज़्यादा strong है, hard है, then you can have a special cell like structure which is called as a lenticels. Now these lenticels can also help you in respiration purpose in case of plants. तो मल्टीपल ऐसे अपन डिस्कशन कर सकते हैं just to ensure that you also have certain gaps. You have certain gaps in between the cells के बीच में certain gaps भी होते हैं और ये gaps के थ्रू you can have diffusion. So you can have diffusion of gases. So again, this is अलग-अलग methods है, but we are not moreover concerned about plants today. We are talking more about animals. तो देखो animals के अंदर भी 11th standard के अंदर आपने कुछ चीजें पढ़ी है guys, ठीक है. देखो animals के cases में भी when I talk, ठीक है, animals के cases में भी मैं जब बात करता हूँ, animals can belong to lower phyla. Okay, lower phylum मतलब poriferans, coelentrates, that is cnidarians, then platyhelminth and haskell, वो सारे, ठीक है. And they can also belong to higher phylums. Now higher phylum मतलब क्या, chordate वाले सारे aves, reptiles, mammals, amphibians, वो सब. तो मतलब क्या, दोनों में अगेन मेथड काफी ज्यादा अलग हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बात किया लोअर फाइलम में, ठीक है, अगर मैंने बात किया लोअर फाइलम में, स्टूडेंट्स लोअर फाइलम के अंदर यू कैन हैव रेस्पिरेशन थ्रू, यू कैन हैव गिल्स, ओके, यू कैन हैव समथिंग कॉल्ड एज बुक, lungs, then you can also have surface respiration. ओके, सरफेस रेस्पिरेशन हो सकता है. देन सर्टन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स. ओके, तो कुछ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं. ये सारा चीजें किन के अंदर है, ये सारी चीजें आपके लोअर फाइलम्स में. हायर फाइलम्स का क्या गेम है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हायर फाइलम्स एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मैमल्स राइट नाउ, ऐसा नहीं कि मतलब एव्स में वगैरह दिखेगा नहीं, डेफिनेटली दिखेगा, बट हायर फाइलम्स जनरली have dedicated respiratory system. Dedicated respiratory system मतलब there is a group of organs, ठीक है, there are group of organs who are doing the job. कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स के ग्रुप रहेंगे जो ये काम करते हैं, जो ये काम प्रोसेस करते हैं. दैट इज व्हाई हायर फाइलम्स हैव वेरी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. And particularly in this chapter, we'll be dealing and understanding moreover of human respiratory system. अपन हायर फाइलम्स में सिर्फ एक ही इसका ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का, एंड दैट इज नथिंग बट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको देने का कोशिश किया कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं. नाउ क्विकली जंपिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मेजर पार्ट विच इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, सबसे पहले बिफोर वी गो ऑन टू इंडिविजुअल डिस्कशंस कि इंडिविजुअल पार्ट्स कौन से हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि भाई इनके एक पार्ट्स का नाम क्या है. सबसे पहले यू हैव नॉस्ट्रल्स. ओके, यू कैन हैव नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स कैन बी फॉलोड बाय नेजल चेम्बर. सो आई एम राइटिंग इट टुगेदर, नेजल चेम्बर, ठीक है. Then you can have the next part which can be pharynx. This is the second part. Then you can have third part which is called as larynx. Then you can have a fourth part which is called as trachea. Fifth one is bronchi. Sixth one is nothing but
bronchioles. Seventh one is called as alveoli. Now students, मैंने आपके सामने ऑलरेडी ये मेंशन कर दिया कि एग्जैक्टली कौन से कंपोनेंट्स हैं और हमको कौन से कंपोनेंट्स डिटेल में पढ़ने हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे और एक चीज आपको हाईलाइट कर दूं कि भाई ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ओके, दीज कंपोनेंट्स फॉल इनसाइड द लंग्स, बराबर ना। सो मतलब ये वाला पूरा पार्ट लंग्स के अंदर आ रहा है, लंग्स के अंदर आ रहा है। हमको इंडिविजुअली हर एक चीज डिटेल में, काफी ज्यादा डिटेल में पढ़नी है। एंड टू बिगिन विथ ये जान लेते हैं कि भाई द मेजर ऑर्गन, ओके, यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट द मेजर ऑर्गन फॉर respiration, major organ for respiration is none other than lungs. Okay, it is lungs, and very very important so because सबसे major exchange of gases वो जो हो रहे हैं वो lungs के थ्रू ही हो रहे हैं। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया गैसेस का, तो ना वो गैसेस क्या है, सी मेनली ना ह्यूमंस दो गैसेस से डील करते हैं गाइस, मेनली दो गैसेस है। एक तो आपके पास हो सकता है ऑक्सीजन, दूसरा हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। एंड टू से सो ऑल ऑफ दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, ये सारे तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर से व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिल्टर द एयर ना। एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन है और सिर्फ CO2, ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। तो मतलब you will have nitrogen also, you'll have hydrogen also, you have oxygen also, you have carbon dioxide also, so multiple gases are there. So you'll have to filter that air and only pass oxygen, ठीक है। और जब आप ऑक्सीजन पास करते हो, this oxygen is going to enter the lungs. एक बार लंग्स में एंटर हो गया तो उसके बाद अभी when you are taking this oxygen inside, मतलब आप तो एयर लेते हो बट जब वो पास हो जाता है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो इंस्पिरेशन, ठीक, इट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। अगर आपने ऑक्सीजन ले लिया तो रिटर्न में क्या मिलता है, रिटर्न में क्या मिलता है, लंग्स के थ्रू, पे अटेंशन, लंग्स के थ्रू, लंग्स जो रहेंगे दे आर गोइंग टू पास CO2 एंड व्हेन दे पास CO2 तो ये CO2 कहां पे जाएगा, ये CO2 कहां पे जाएगा, दिस CO2 is going to go out and this process is nothing but expiration. This process is expiration. देखो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या, मतलब क्या, when you inhale, you are inhaling air and यहां से मैंने फिल्टर कर दिया ऑक्सीजन, ठीक। ये ऑक्सीजन कहाँ पे एंटर करेगा गाइस, ये ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करने वाला है और लंग्स से फिर बाकी सारे बॉडी टिश्यूज में जाएगा। एंड आप जब बात करते हो एक्सेल का, तो एक्सेल में आप स्ट्रिक्टली क्या निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस विल गो इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इनहेलेशन में जो ऑक्सीजन आप कंज्यूम करेंगे, आप जो इनहेल करेंगे, दैट विल एंटर इनटू द लंग्स एंड लंग्स से फिर बाकी सारे सेल्स बॉडी के आसपास चला जाएगा। तो ये बेसिक आपको एक ओवरव्यू दिया कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले और किस तरीके से आपको इसको समझना है और जानना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड इंडिविजुअली पार्ट्स को जरा जानने का कोशिश करते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट which we are going to discuss is your nostrils and nasal chamber. So I am taking this topic together, nostril and nasal chamber. मैं दोनों भी टॉपिक एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। अभी जरा जान लीजिए nostrils और nasal chamber क्या फर्क है। The nostrils are nothing but a passage through which there is entry or exit of gases, बराबर है। एक पतला सा नाक में आपके ट्यूब है और इस ट्यूब के जरिए गैसेस एक्सचेंज हो जा रही है। तो मतलब ये जो नॉस्ट्रिल होता है, जो कि जिसको आप नाक बोलते हो, यही रीजन, ठीक। यहां से व्हाट विल हैपन, जो एयर रहेगा वो एक तो अंदर आ सकता है या फिर जो आप CO2 रिलीज किए हो वो बाहर जा सकता है।
So मतलब nostril is a region through which there is exchange of gases. Exchange of gases. Okay. Now other than that, this nostrils जो है nostrils, they are going to lead into what is called as nasal chamber. Okay, they're going to lead into nasal chamber. Students, now what is exactly nasal chamber? Nasal chamber मतलब passage. Can you see this nasal cavity? Nasal cavity एक टाइप का चेम्बर है जहां से एक बार आपने अगर इनहेलेशन कर लिया तो इनहेलेशन करने के बाद वहां से जो एयर रहेगा वो अंदर आएगा और फिर जहां पे नीचे जाना है वो चला जाएगा. सो एरिया इन विच दिस पैसेज मूवमेंट अकर्स इज व्हाट इज कॉल्ड एज नेजल चेम्बर. ठीक है. और ये जो नेजल चेम्बर है इट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड इवन. बोलने का मेरा मतलब ये है कि आपका जो नॉस्ट्रल्स होता है दे आर सेपरेटेड ना. आपके पास दो नाक है ना. सो दे आर सेपरेटेड बाय अ कार्टिलेज. ओके, इट इज सेपरेटेड बाय अ कार्टिलेज. एक टाइप का कार्टिलेज जिससे ये सेपरेट हो गया ना. ये कार्टिलेज का स्टूडेंट्स आपको नाम पता होना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट इन वन सेंस. एंड दिस द नेम ऑफ द कार्टिलेज इज नथिंग बट mesothmoid cartilage. So the name of the cartilage is mesothmoid cartilage. ठीक है. तो mesothmoid cartilage है जिसका फंक्शन क्या रहेगा? जिसका फंक्शन रहेगा नेजल चेम्बर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दो नाक देना, दो नॉस्ट्रल्स प्रोवाइड करना. एंड इट इज अ कार्टिलेज. why do you say it is a cartilage? Because it is a soft bone. It does not have a rigid structure. Okay, it has a very soft structure and very soft nature and a movable nature, and therefore we call it as cartilage. The name of the cartilage is mesothmoid cartilage. ठीक है. इसी नेजल चेम्बर में आपको ना तीन हिस्से, तीन रीजन्स देखने को मिल सकते हैं. यू कैन फाइंड 3 रीजन्स. ओके, 3 रीजन्स. कौन से भाई है? सबसे पहला रीजन जो अपन डिस्कस करेंगे is called as the vestibular region or simply called as vestibule. Students, what is vestibule? Vestibule is a region, a very proximal region. proximal region का मतलब ये कि आगे की तरफ this region. Can you see यहाँ पे आगे की तरफ. ठीक है, आगे वाले साइड में proximal region है and it contains numerous hairs. ठीक है, बहुत सारे बाल होते हैं. ठीक है, बाल होते हैं अंदर. एंड व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ हेयर? कैन एनीबडी टेल मी? करेक्ट. फंक्शन ऑफ हेयर इज टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का बेसिक काम जो है वो करता है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. हियर हैव वेस्टिब्यूल. Then you have the second region which is called as the respiratory region. Okay, respiratory region. Now this respiratory region is nothing fancy. कुछ ऐसा fancy नहीं है. Respiratory region is nothing but region of conduction. So it is region of conduction of air. कि कंडक्शन मतलब क्या? कि भाई एयर यहां से एंटर किया और अंदर यहां से चलेगा ना. कंडक्शन होगा एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज द olfactory region. Okay, the third part is called as olfactory region. Olfaction, always remember, olfaction meaning sense of smell. Olfaction मतलब sense of smell, मतलब it is responsible for detection of smell. Can you see this? ठीक है. So olfaction का function क्या होता है कि भाई वो ना स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है. तो वो एकदम पीछे वाले साइड में होता है, नाक के एकदम पीछे की तरफ होता है. एंड सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट सो बिकॉज एज यू कैन सी भाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ स्मेल एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ योर नोज. Students, I hope you are able to understand. So this is nostrils, nothing complicated. कुछ ऐसे एकदम ऐसा rocket science based ऐसा कुछ भी नहीं है. Easy and very simplistic to understand. The next part जो अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं, we can take it. I'll add a slide here. ठीक है.
सो मैं सेकेंड पार्ट लेता हूं डायग्राम के लिए. वी कैन गो ऑन द प्रीवियस स्लाइड. ओके, तो सेकेंड पार्ट इज योर फेरिंग्स. फेरिंग्स, ठीक है. Students, what is pharynx? Okay, pharynx, if we have to define pharynx is a common pathway. It is a common pathway for food and air. Okay, खाना और पानी के लिए ये common pathway है. Common pathway है. And because it is a common region, pharynx के दो कंपोनेंट्स है. ओके, pharynx के दो कंपोनेंट्स है. एक होता है जिसको आप बोलते हो नेजोफैरिंग्स. ओके, एक होता है नेजोफैरिंग्स. दूसरा होता है जिसको आप बोलते हो ओरोफैरिंग्स. स्टूडेंट्स, अभी नेजोफैरिंग्स एंड ओरोफैरिंग्स क्या है? नेजोफैरिंग्स इज अ रीजन ऑफ अ फैरिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द नेजल कैविटी. ठीक है. एंड ओरोफैरिंग्स इज अ रीजन ऑफ अ फैरिंग्स व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द ओरल कैविटी. मतलब एंटीरियर साइड पे, आगे ऊपर वाले साइड पे यू विल फाइंड नेजोफैरिंग्स. नीचे वाले साइड पे यू विल फाइंड व्हाट इज कॉल्ड एज ओरोफैरिंग्स. सो कैन यू सी? आई विल जस्ट हाईलाइट फॉर यू. सो दिस रीजन टुवर्ड्स द नेजल कैविटी, ऊपर की तरफ क्या है भाई? क्या नाम दिया अपन ने? वी हैव कॉल इट एज नेजोफैरिंग्स. ठीक है. नेजोफैरिंग्स के जस्ट नीचे यू कैन सी दैट दिस रीजन, दिस something which is marked here in bluish shade is what is called as oropharynx. ठीक है, oropharynx. So nasopharynx and oropharynx ऐसे दो पार्ट है. ठीक है, यहां तक आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. एंड भाई, is there any significant function of pharynx? See, pharynx is just responsible for the process of conduction, or simple words में to put it, for transfer of air. ठीक है, air from nasal cavity to लैरिंग्स. ओके, नेजल कैविटी से उठाएंगे हवा और अपन लैरिंग्स में ढकल देंगे. सर लैरिंग्स क्या? लैरिंग्स इसके बाद वाला पार्ट है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई होप यू आर एबल टू प्रोसेस दिस. सो एनाटॉमिकली व्हेन यू लुक एट इट, इट इज समथिंग लाइक दिस, जैसे मैंने बताया आपको. ठीक है, अभी अपन आगे जाते हैं और समझते हैं द नेक्स्ट पार्ट विच इज योर दिस थिंग, लैरिंग्स. ठीक है, द थर्ड कॉम्पोनेंट इज लैरिंग्स. स्टूडेंट्स, लैरिंग्स जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करता हूँ ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? लिसन टू दिस. लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. It is also called as sound producing organ. In other words, it is also called as voice box. It is also called as voice box. So why is it called as voice box, students? Why is it called as voice box? Because it helps you talk. Okay, बात करने में हेल्प करता है, बात करने में मदद करता है. So that is why it is also called as voice box. So मतलब अगर इसको voice box बोला है, कुछ तो सिग्निफिकेंट रहेगा ना इसके अंदर, कुछ तो होगा. वे क्या है ना? दिस लैरिंग्स जो होता है आपका, लैरिंग्स, इट कंटेन्स अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स. स्टूडेंट्स, व्हाट इज वोकल कॉर्ड? अगर किसी ने पूछा, आपके स्कूल के कॉलेज के टीचर ने पूछा, तो वोकल कॉर्ड बोल देने का, इट इज एन organ of sound production. So in short, it is responsible for process of sound production. इसके वजह से आप बात कर पाते. See, understand ना, एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे. आप जब बात करते हो ना, when you talk, it is not only vocal cord which is responsible to do the job. ठीक है, apart from vocal cord, even your tongue is responsible to direct that flow of air. See, अब जब बात कर रहे हो, look at it, you're using air. ठीक है, अगर आपके लंग्स के अंदर, आपके फेफड़ों के अंदर अगर हवा नहीं है,
what is going to happen? You'll not be able to speak anyway. So air is required for you to talk. So what vocal cord is doing is allowing the passage of air. ठीक है, वो पर्टिकुलरली कुछ और आपका वॉइस आइडेंटिटी नहीं बना रहा है. तो द अदर ऑर्गन विच डज द जॉब इज योर टंग. What does tongue do? Tongue is going to direct the flow of that air which is released by the larynx. तो लैरिंग्स ने जो हवा रिलीज किया है उसी हवा को टंग क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है. इसके वजह से व्हेन यू टॉक देयर इज मूवमेंट ऑफ टंग. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप टंग पकड़ के बात करोगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड यू माइट स्टटर. ओके, आपको ढंग से बात करने को नहीं होगा. And that is why, having said that, tongue will just redirect the flow of air released by the vocal cords. So tongue is equally important, if not more, as when you compare with vocal cords. So vocal cords alone are not contributing in this, but you also have tongue which is doing the job. I hope you are able to understand this. But अभी because अपन larynx का बात करें तो this is what it is. ठीक है, ये जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स, इसके पास ना एक कार्टिलेज है जिसके बारे में मुझे बात करना है आपसे. सो लैरिंग्स कंटेन्स वन अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेज. ओके, एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है. और ये जो स्पेशल टाइप का कार्टिलेज है, इस स्पेशल टाइप के कार्टिलेज का नाम होता है एडम्स एप्पल. ओके, एडम्स एप्पल. ये एडम्स एप्पल जो है, एडम्स एप्पल है. अगर किसी ने पूछा इसका शेप, सो एडम्स एप्पल इज पिरामिडल. इट्स पिरामिडल. पिरामिडल मतलब इन शॉर्ट ट्रायंगुलर ही है बट पिरामिडल है. अभी ये सर ये क्यों मैं खास करके ध्यान दे रहा हूं, बराबर है. पिरामिडल जो है, पिरामिडल शेप जो एडम्स एप्पल, इट इज सीन ओनली इन मेल्स. इट इज सीन ओनली इन मेल्स. सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ये कैरेक्टर है. सो मेल्स में एडम्स एप्पल होना is a characteristic of developing or onset puberty. Onset puberty meaning the puberty has just started. ठीक, I hope you're able to understand that. So, and puberty in boys or in males is influenced by an hormone called as testosterone. So once a male's body surges with testosterone, the next possible character that your body might develop is development of Adam's apple. So females will not have Adam's apple and males will compulsory have them under the influence of a hormone which is a very important sex hormone called as testosterone. ठीक है, सो ये आपके पास पिरामिडल शेप का एडम्स एप्पल प्रेजेंट है. ये लैरिंग्स है. मैं और एक यहाँ पे चीज बताना चाहूंगा कि ना देखो, एक एक ऐसा रीजन है आपके फैरिंग्स और लैरिंग्स के आसपास, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे food pipe, okay, food pipe and windpipe meet. A region where a food pipe and the windpipe meets. Now this region where the food pipe and the windpipe meet is called as glottis. ये एक्चुअली फैरिंग्स में है बट रीजन का नाम ग्लॉटिस है. अब ये ग्लॉटिस ना गाइस दिखता कैसे जरा समझिएगा. ठीक है, मैं एक अप्रोच बना रहा हूं इंसान का. ठीक है, नाउ से फॉर एग्जांपल ये आपका कौन सा ट्यूब गया, बराबर, इट इज विंड पाइप. और ये आपका कौन सा ट्यूब जा रहा है, दिस इज अ फूड पाइप. ठीक है, एकदम रफ अंदाजे के लिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको समझे. यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, oh sorry, ये वाला पॉइंट. ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस. इसको ग्लॉटिस बोलते हैं, जहां पे देखो फूड पाइप और विंड पाइप मिल रहे हैं. नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड, समझना जरा, इन ऑर्डर टू अवॉइड मिक्सिंग, मतलब खाना विंड पाइप में जाए और हवा फूड पाइप में जाए,
इस चीज को अवॉइड करने के लिए व्हाट डू यू हैव टू अवॉइड मिक्सिंग, यू हैव अ cartilaginous, you have a cartilaginous flap. This cartilaginous flap is made up of course cartilage, and this cartilaginous flap is called as epiglottis. ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस करता क्या भाई, अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये बनाया, क्या नाम है इसका, विंड पाइप बनाया, एंड मैंने यहाँ पे मान लो फूड पाइप बनाया. ठीक है, फूड पाइप बनाया. कैन आई से अगर मान लो डायरेक्शन रहेगा, मान लो यहाँ से खाना खा रहे हो आप, खाना खा रहे हो, कैन आई से खाना शुड एंटर डायरेक्टली इनटू द फूड पाइप. इट शुड नॉट एंटर हियर, इट शुड नॉट एंटर हियर. ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से जाना है, इसको ऐसा जाना है ना. ग्रीन कलर के पाइप में जो कि विंड पाइप है वहां पे खाना जाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको कॉफिंग होगा. ठीक है, खांसने को होगा, सो वो चीज नहीं होना चाहिए. देयरफॉर व्हाट डू यू डू, मैंने क्या कर दिया, मैंने ना यहाँ पे एक फ्लैप लगा दिया. फ्लैप, अब ये फ्लैप क्या करेगा, ये जस्ट अ सेकेंड, ये ऐसा फ्लैप है. ये फ्लैप क्या करेगा, जब खाना आ रहा है ना, जब खाना आ रहा है तो खाना मूव होगा और डायरेक्ट इधर चला जाएगा, और ये ढक्कन बंद हो जाएगा, ये ढक्कन बंद रहेगा. So this exactly is important because you know it helps us understand the mechanics. So this is how it is. So just if I can erase this, तो आपको समझे मैं क्या बोल रहा हूँ. ये देखिए जरा, ये आपका लैरिंग्स, ये आपका लैरिंग्स, ये लैरिंग्स के अभी इधर फॉर एग्जांपल इधर से आपने खाना खाया, इधर से आपने खाना खाया, ये टंग इधर से खाना खाने इधर नीचे गया, इधर से नीचे आया ना, यहाँ पे, यहाँ से नीचे आने के बाद देखो आप यहाँ से जब खाना चबा रहे हो, जब निगल रहे हो, तो ये पीछे वाले ट्यूब में जाना चाहिए ना, पीछे वाले ट्यूब में जाना चाहिए ना. तो कैन यू सी यहाँ पे एक फ्लैप है ऐसा. ये फ्लैप क्या करेगा, जैसे आप यहाँ से कंज्यूम करेंगे खाना, तो सीधा इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द फूड पाइप. Isn't it beautiful? और वो क्या करेगा, वो विंड पाइप को बंद कर देगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द फूड enters in the food pipe, wind enters in the wind pipe, that is air enters in the air pipe. That is very very important, which is that job is looked upon by what is called as epiglottis. देखो स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या, the concept is interesting, very very interesting, and at the same time it is also very very important for you guys to know and understand this. ठीक है, so this is in general what we are discussing. Now we have done with pharynx also, we have done with larynx also. Larynx के बाद the next point where we are going to jump is trachea. ठीक है, trachea कितना है ये, थर्ड ना, ये फोर्थ. So now the fourth component is trachea. देखो ट्रकिया जो है, ट्रकिया इट्स अ ट्यूब, इट्स अ ट्यूब, यू कैन लुक इन द डायग्राम. ठीक है, वो जो बड़ा सा ट्यूब है, इट इज ट्यूब, रफली 10 to 12 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, रफली 10 to 12 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, इतना अप्रोक्सीमेट इसका लेंथ है. ये पर्पल कलर का पूरा ट्यूब इज ट्रकिया. ठीक है, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब. खास बात बताऊं, इट connects larynx to the lungs. बीच में ही है, एग्जैक्टली बीच में, डायरेक्ट वो लंग्स के साथ अटैच करवा देगा. बट ट्रकिया का एक प्रॉब्लम है. सी ट्रकिया इज नॉट अ बोन, इट्स नॉट अ बोनी स्ट्रक्चर. बोनी स्ट्रक्चर नहीं है मतलब क्या पता है, इट माइट हैव अ चांस ऑफ कोलैप्स. कोलैप्स का मतलब क्या है कि जहां पे आपने ये ट्यूब है, अगर मान लो कुछ कारणवश ये ट्यूब दब गया, what is going to happen, air cannot enter. If the air cannot enter, a person might choke and simply die. So you'll have to avoid that. So what have you done? So if it is this is your trachea, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने ना कार्टिलेज लिया है, और भी पूरा सर्कुलर कार्टिलेज नहीं है, इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज है, सी शेप्ड. ये सी शेप्ड कार्टिलेज को मैंने, मान लो ट्रकिया का आप जिस तरफ से देख रहे हो फ्रंट व्यू है, तो ट्रकिया को इस तरीके से अटैच किया है ऐसा, ताकि उसका जो शेप रहे वो मेंटेन रहे.
मतलब in order to avoid or prevent the trachea from collapse, okay, in order to prevent the trachea from collapse मतलब अभी बताया ना मैंने, दबने से बचाने के लिए. So what you have, we have 16 to 20 incomplete C-shaped cartilaginous rings. Okay, incomplete C-shaped cartilaginous rings. Cartilaginous क्यों? Because it is not a rigid structure. As I said, it is a softer structure. So can you see this? ये cartilage है, ये cartilage है, ये कैसा, ऐसा. ठीक है. सो ऐसे मल्टीपल 16 to 20 आपको वहां पे लाइन में दिख सकते हैं. ये क्या करते हैं? ट्रकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये ट्रकिया हुआ और बेसिक फंक्शंस का. बाकी इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, बट अभी नेक्स्ट का वे डिस्कस करने वाले हैं. फिफ्थ पार्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस या इन शॉर्ट ब्रोंकाई. ठीक है, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई. अब ये ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई एग्जैक्टली क्या है भाई? क्या है ये ब्रोंका या ब्रोंकस इज नथिंग बट इट एंटर्स. ठीक है, इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द लंग्स. ओके, लंग्स में एंटर करेगा, बट लंग्स में एंटर करने से पहले इट इज डिवाइडिंग into right and left bronchus. ठीक है, it is dividing into right and the left bronchus. I want you to look at the diagram now. Right and the left bronchus, right and left bronchus में divide कर रहे हैं. Can you see here? देखो, primary bronchus येलो कलर इधर से split हो गया, ये split. Can you see ये वाला पूरा हिस्सा? This is your primary bronchus. So right वाला bronchus क्या करेगा? Right वाला bronchus is going to enter into the right side of the lung. Left bronchus is going to enter into the left side of the lung because we have paired lungs. So therefore दोनों lungs को equal supply of oxygen and air मिलता है. तो that is the division वाला part जहाँ से bronchus divide करता है. ये bronchus, this bronchus will also have these things. It will also contain C शेप्ड रिंग्स. ये जो आपके पास ट्रकिया में थे ना, ट्रकिया में, वो भाई साहब इसके पास भी प्रेजेंट होते थे. यहां तक समझ में आ रहा है? ब्रोंकस, आर यू अंडरस्टैंडिंग ना? ब्रोंकस क्या करेगा पता है? ब्रोंकस क्या करेगा? दिस ब्रोंकस इज गोइंग टू डिवाइड. ओके, दैट इज इट इज गोइंग टू ब्रांच आउट. ठीक है, ब्रांच आउट. ये जब ब्रांच आउट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे. कैन यू सी द रेड वाला पार्ट? दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकस. पूरा सेकेंडरी क्यों बोला? येलो वाला प्राइमरी है भाई. ये वाला जो मैंने जो यहाँ पे बनाया है, ये बताया मैंने आपको, ये वाला पार्ट, दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकस. ठीक है. सो एक बार प्राइमरी ब्रोंकस, मान लो प्राइमरी ब्रोंकस ब्रांच आउट कर दिया तो क्या बनाएगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकस. भाई और डिवाइड करो, देखो जरा आगे, वो जो पर्पल ब्लू जो भी कलर है वो, उसमें जो डिवाइड किया है. सो सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू, यस करेक्ट, टर्शरी ब्रोंकस. टर्शरी ब्रोंकस से चीजें थोड़ी आगे अलग हो जाती है. टर्शरी ब्रोंकस इज गोइंग टू डिवाइड टू फॉर्म ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, ब्रोंक्यूल्स. स्टूडेंट्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये देखो, कैन यू सी ये ब्रोंक्यूल्स. ठीक, समझ में आ रहा है? ब्रोंक्यूल्स क्यों सर इंपॉर्टेंट क्यों बोला? बिकॉज ना इसको ना ऐसा कुछ चीज होता है, रुको जरा, कुछ इस तरीके से इसको ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा लगा हुआ होता है. कोई बता सकता है क्या होता है? जो एब्सोल्युटली राइट, क्या बोलते हैं इसको? यस करेक्ट,
It is called as alveoli. Can you see this? This is your alveoli. ठीक है, मतलब क्या, ये क्यों मैंने इंपॉर्टेंट बोला समझे अभी? ये जो ब्रोंकियोल की तरह, ये जो ब्रोंकियोल है, ये आर गोइंग टू फर्दर फॉर्म विच इज कॉल्ड एज alveoli, और प्लूरल में इट इज सिंगुलर में इट इज कॉल्ड एज alveolus. सो देयरफॉर alveoli या फिर alveolus, ये जो alveoli alveolus है, इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. एंड लंग्स के अंदर दिस इज द मेजर ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन. इसके बिना एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल नॉट अकर. इसके बिना होना पॉसिबल ही नहीं है. मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लंग्स के अंदर कहलाता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ. ये ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई. ठीक है, इसके अलावा और कुछ सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है. तो ब्रोंकस ये हुआ. स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जो कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, विच इज आई थिंक व्हाट इज द काउंट, फिफ्थ सिक्स्थ ना, सिक्स्थ. चलो सिक्स्थ पे जाते हैं. सिक्स्थ इज नन अदर देन लंग्स. लंग्स स्टूडेंट्स, लंग्स इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर. पेयर्ड बोले तो, पेयर्ड बोले तो दो दो. कहाँ पे लोकेटेड है बता सकते हैं? इट इज लोकेटेड इन a region which is called as thoracic cavity. जिनको thoracic cavity क्या होता है ये नहीं समझ में आता, उनके लिए लिख रहा हूँ chest cavity. ठीक है, बट क्या इसे हवा में लटक रहा है क्या? वो बिल्कुल भी नहीं. इट इज सपोर्टेड. इट इज supported by a structure which is called as rib cage. मैं सपोर्ट का यहाँ पे मतलब प्रोटेक्टेड लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको गलत अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. इट इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज. सो आसपास अगर आप फील करोगे, दिस इज बोन ना, व्हेन यू टच हियर इट इज बोन. सो आसपास का पूरा रीजन बोन है, उसको आप रिब केज बोलते हैं. उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है. ठीक है, उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट जो कि पेड़ में होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ व्हेन आई टॉक लंग्स टू बी अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, सो लंग्स जो होते हैं, लंग्स दे कंटेन लोब्स का मतलब कंपार्टमेंट्स. ठीक है, सो यू हैव राइट लंग, यू हैव लेफ्ट लंग. राइट हैज 3 lobes. मैं यहीं पे ऐसे लिख दे रहा हूँ. राइट हैज 3 lobes एंड लेफ्ट लंग हैज 2 lobes. So you have 3 division of lobes and 2 division of lobes, which is 3 plus 2. इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट है, सो देयरफॉर राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, तो राइट के पास 3 लोब है, लेफ्ट के पास 2 लोब है. नाउ कैन यू सी ये वाला पार्ट, अभी ये वाला राइट लंग हो गया, ये वाला लेफ्ट लंग हो गया. कैन यू गेस जस्ट बाय चांस व्हाट इज दिस? कोई बता सकता है? देखो जरा वीडियो पॉज करो. ओके, ठीक है. ना अगर इसको मैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखो, पोस्टीरियर मतलब नीचे. ठीक है, पोस्टीरियरली लंग्स आर प्रोवाइडेड with what is called as diaphragm. Very important, very important. Why important है भाई? It is muscular. So इसका मतलब लंग्स मस्कुलर नहीं है क्या? ना, लंग्स मस्कुलर नहीं है. लंग्स इन्फ्लेट और डिफ्लेट डायफ्राम और आपके एफर्ट की वजह से होते हैं. तो मतलब ये मस्कुलर है, और यही मेजर ऑर्गन है सपोर्ट के लिए. लंग्स के सपोर्ट के लिए सबसे मेजर ऑर्गन है. कलर के बारे में ये सब मैं अभी बताता नहीं, अभी तो यू आर नॉट ग्रोन अप्स, यू नो व्हाट इज द कलर ऑफ द लंग. द कलर ऑफ द लंग इज पिंक. इट इज नॉट रेड, it is pinkish reddish in color. And those people who are very chronically smoky, those who smoke a lot like a chimney, have lungs which will be tarred meaning they'll be black. So supremely black, and in that case the patient's survival rate will also be lesser. But healthy lungs will have a pinkish to reddish color,
जनरली एंड नेचुरली। ठीक है, सो इधर तक आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा मुद्दा इसका ये बात करेंगे कि भाई आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स, ठीक है, दे आर कवर्ड, दे आर कवर्ड बाय अ सैक, दे आर कवर्ड बाय अ सैक। सैक का नाम क्या है? इस सैक का नाम है प्लूरल सैक। क्या नाम देंगे? प्लूरल सैक। ठीक है, प्लूरल सैक। खास बात, प्रोटेक्शन। अभी सैक है, सैक है, ये सैक कैसा होगा पता है? ये जो इनर प्लूरा लिखा है देखो, इनर प्लूरा आउटर, ये ऐसा इधर इधर से ऐसा ऐसा सैक हो सकता है। सो दिस सैक इज व्हाट इज द प्लूरल सैक। प्लूरल सैक है, फ्लूइड भरा है, सो सैक इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, इट इज कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन सर, फंक्शन लुब्रिकेशन एंड कुशनिंग। कुशनिंग बोले तो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, शॉक को एब्जॉर्ब, अगर झटके वगैरह लगे वगैरह तो प्रोटेक्शन का काम भी कर सकता है। ठीक है, ईच लंग कैन हैव अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 मिलियन एल्वियोलाई। ठीक है, ये नंबर वेरी करता है बट रफली अराउंड इसके आसपास हो सकता है। ठीक है, एंड विदाउट लंग्स प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेशन वोंट बी देयर इन ह्यूमंस। बिना इसके रेस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। और जब मैं रेस्पिरेशन का बात करता हूँ, मेनली मैं दो ही कंपोनेंट का बात कर रहा हूँ गाइस। जब मैं रेस्पिरेशन का, सी नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आल्सो। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस, ये कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, बट अभी के लिए अपन सेम मान के चलते हैं, उसको सेम कंसिडर करके चलते हैं कि भाई व्हेन आई से फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, अगर ऐसा किसने स्टेटमेंट बड़ा सा फेंक के मारा, मतलब कुछ नहीं है, इंसान एक तो ये करेगा, क्या लिखा हुआ नहीं है, इनहेलेशन करेगा, या फिर इंसान एक्सहेलेशन करेगा, सिंपल। और कुछ भी फैंसी इसके अंदर नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सो दिस इज द लंग्स। सो ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सिंपल एंड वेरी वेरी इजी एंड नथिंग मच कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हियर। नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टार्ट करते हैं फटाक से अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हाउ डज द गैसेस एक्सचेंज। So you have three types of mechanisms there. You have external respiration, you have internal respiration, you have cellular respiration, and of which internal respiration is significantly important and very very crucial for you to understand. I hope ये module समझा है आपको। Chapter काफी interesting है guys, and especially it is human physiology. So more than that, it's very very interesting, and for me also. Definitely keep watching the channel. Definitely consider. Understanding and keep your understanding point of view very very rigid। ठीक है, don't just rote learn, that is mug up मत करिए, चीज़ों को जरा समझने का ट्राई करो। एप्लीकेशन ना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज एक बार आपको समझ गया ना, फिर एप्लीकेशन के हिसाब से आपको ना पैनिक होने का जरूरत नहीं, फिर क्वेश्चन कुछ भी आए एग्जाम में, इट विल नॉट बी अ कंसर्न एट ऑल फॉर यू। सो इन माई ओपिनियन बेटर यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम कॉन्सेप्ट। एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लो, चीज़ें समझ जाएंगी। मेन कॉन्सेप्ट जो है, मेन जो बुलेट्स है, जो मेन पॉइंट्स है, वो तो सारे मैं कवर कर ही रहा हूँ। बस इंग्लिश का जिनको लिखने का वगैरह दिक्कत है, उनके लिए एक बार आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा। And I think more than sufficient what has been taught as far as human respiratory system is concerned. I'll see you in the next module with this chapter. Stay tuned. Do consider also watching our previous videos for biology subject and all the other subjects too, PCM. And if you like our effort, please do consider subscribing to our YouTube channel, YSR Academy. Consider liking this video, share with your friends so even they get knowledge about it. And if you have any kind of doubts, please do feel free to comment down in the comment section. We'll reply you, and I'll see you in the next class. Till then, take care and stay safe.